Hello, good evening, everyone. Myself, Dr. Pranita Patil from Virar, Mumbai. I am your host for today. I welcome you all on behalf of United is our 80th session of that series, Guruji ke Saath Guruvar. Today, I feel blessed and honored to welcome our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, who is my parent, my guide. Sorry. Sir is an author of bestseller book Humanopathy. Till now, Sir has conducted more than 300 seminars and more than 200 webinars all across. Sir has conducted seminars on many diseases, specifically like diabetes, cancer, infertility, etc. Sir is a pioneer of group Ignited Minds by PHF on Telegram, where more than 2,500 doctors learn on daily basis. He has discovered unique method known as MML, that is Mind Method by Dr. Liaquat. The focus of MML is practicing solely on mind, and empathy is the mantra of MML. Sir is a true master of gestures, and Sir has introduced gestures in the homeopathy. Through Sir's keen observation and huge experience, he has found out many original gestures, which I feel is a blessing to the world of homeopathy. So, friends, without wasting much time, let's welcome our beloved Guruji, Dr. Liaquat Namole sir, with huge round of applause. Welcome. Thank you. Welcome, sir. Thank you, beta. Thank you. As always, I am very disorganized. The new age polycrests, right? Nice. The polycrest means which can be used in multiple diseases, multiple problems, and frequently. Okay. So new age means नया जमाना है ना आप लोग सारे नए जमाने के by the way I'll share some experience of the naya zamana also after a while okay but to begin with let us understand what I'm going to teach today okay and if I have time I'll share some experiences of naya zamana also okay so I'll start with a case okay the case that we read in Ignited Minds today okay I will start on that ये चश्मा अच्छा है यार अब तुम स्टाइल मारने लगाते मेरे बच्चे मुझको okay so I'm going to discuss 3 cases okay one of a child okay a small child say around I think 7-8 years old child okay and he came with complaint of very frequent colds very frequent colds okay very frequent colds okay and okay. And the child is very shy okay? Very shy child was smiling one very important thing that I observed in the child was कि मम्मी ने बताया कि उसके बाल वगैरह जो है ना एकदम ऐसे के ऐसे ही रहते हैं एब्सोल्युटली ऐसे चिपकाए हुए तो चिपकाए हुए ही रहे ओके उसके कपड़े वगैरह बिल्कुल खराब नहीं होते एकदम ऐसा ओके एकदम ऐसा इस्त्री वगैरह उसकी किताबें भी एकदम मस्त एकदम से मतलब जो अपने बुक्स को ऐसे फोल्ड आते हैं ना बीच में है ना ऐसे जो फोल्ड अपने पेजेस पे हो जाते हैं वो भी नहीं होते उसके ठीक है वो बुक मार्क भी ऐसा प्रॉपर एकदम मस्त ऐसा वो कागज का वो एरो वाला बुक मार्क आप बनाते हो ना कागज का फोल्ड के वो बुक मार्क्स रखता है ओके ये चीज खाने के मामले में भी एकदम साफ सुथरा एकदम उसका हर चीज उसकी अपनी एकदम सही जगह पर होती है ओके वेरी प्रॉपरली केप्ट एंड वेरी वेल ड्रेस्ड एंड मम्मी ने बताया कि इसका ऐसा है कि इसकी कपड़े की घड़ी भी नहीं टूटती है आप समझते हो ना कपड़े की घड़ी मतलब द फोल्ड्स आर आल्सो सो वेल
maintained. ओके, मतलब उसके कपड़ों को वो बता रही थी कि मंडे के दिन मैं करती हूँ आयरन, ठीक है ना, तो 3 दिन बाद धोने के लिए जाते हैं, ठीक है, इतना उसका माशाल्लाह से बच्चे का ये, और बच्चा बात नहीं कर रहा था और एकदम ऐसा पीछे पीछे जा रहा, ओके, बस दिस वाज द केस, ओके, आई कैन शो यू द चाइल्ड, ओनली थिंग इज बाद में इसको हम लोग मानसी इसको जरा ये कर लेना बेटा, ओके, उसके आंख पे वो कर लेना, आप सिर्फ बच्चा देख लीजिए, ठीक है, सबने देख लिया, ओके, कोई इसको ये नहीं करने का प्लीज, स्क्रीनशॉट लेके किसी सोशल साइट्स पे नहीं डालना प्लीज, उतना एक आप लोगों से रिक्वेस्ट, चूंकि वो इसके लिए नहीं है, सो दिस इज द केस ऑफ द चाइल्ड, ऑलराइट, सो कोई बोल सकता है, एनीबॉडी हैज एनीथिंग टू, यस, टेल मी, Sir, tidy in personal appearance. ओके, ग्रेट, आपने ही बताया मराठी का। हाँ, थोड़ा सा जो मेरे साथ जुड़े हुए बच्चे थोड़ा बाद में बोलो, बाकी दूसरों को बोलने दो। ये लोग बापू जो है ना मेरे लेक्चर्स वगैरह भी अटेंड करता है, तो आई नो, है ना, तो कोई नए लोग बोलने दे बेटा, बापू, टाइड यस इज सर। राइट, वेरी गुड, सर फेस से थोड़ा डल माइंड लग रहा ओके, है, माइंड इतना एक्टिव नहीं लग रहा, डलनेस लग रही है। ओके, राइट, गुड, ग्रेट, हाँ, और कोई, हम्म, और Moon face. the Sachdeva is saying proper too. How, Sumita? Tell me. Can you explain? गुड इवनिंग सर। Yeah, सर जैसे good आपने बोला evening. कि वो बिल्कुल उसके आयरन हुए रहते हैं और बिल्कुल वैसे ही हमेशा मतलब वो हिलता भी नहीं है, क्रीज भी नहीं हिलता है, तो इट्स लाइक, बट इट इज माय अंडरस्टैंडिंग कि बिल्कुल प्रॉपर टू, बिल्कुल जैसा होना चाहिए वैसा है। Good. Too proper. हम्म। All right. और कोई? Anybody else? Hmm? Anybody else wants to share? तो बच्चे का मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ ना, चाहे तो समझ में आए ना आप लोग, ठीक है, और एक अभी दूसरा मैं बताता हूँ, बाद में खाली मानसी इसके आंख पे ये कर लेना बेटा, वो पट्टी कर लेना प्लीज, मैं और एक बताता हूँ, आपको फिर आसान हो जाएगा समझने में, पिक्चर्स, राइट, जूम कर सकते हैं ना अपन, और कोई एनीथिंग एल्स अपार्ट फ्रॉम दैट, जो अभी बाकी दो लोगों ने बोला, एनीथिंग एल्स दैट यू मेक आउट ऑफ दिस गाइस, हेलो, एनीबडी एल्स वांट्स टू स्पीक, लेट्स हैव इंटरेक्टिव सेशन, यू नो आई लाइक टू interact, this is the place we can actually interact. Fastidious personal appearance about, what is fastidious, what is fastidious, I don't know. सर सब चीज एकदम ऑर्डर में, नीट एंड क्लीन। सब चीज ना, जी सर। सब चीज, इसका क्या है, हेलो डॉक्टर, फास्टिडियस मतलब एक चीज समझ लो, हाँ कपड़े, हाँ बोलो, अब बोल लो पहले, हाँ, फास्टिडियस कपड़े का वगैरह सर, मतलब जैसे है, कि ऑर्डर है इसके, और बाकी अपीयरेंस को ही लेके है वो, बाकी चीजें कुछ डिस्क्रिप्शन फास्टिडियस हुआ का नहीं मतलब कैसे। क्या होता है, फास्टिडियस का मतलब होता है हार्ड टू प्लीज,
फास्टिडियस का मतलब है हार्ड टू प्लीज. प्लीज रिमेंबर दिस. फास्टिडियस मतलब कपड़ा वपड़ा सही नहीं. फास्टिडियस मतलब हार्ड टू प्लीज. प्लीज रिमेंबर दिस. ओके गाइस. सर ओके. एक बात है ना कि अगर उसके कपड़े भी बिल्कुल ही अनप्रेस नहीं हो रहे, कोई उसको सिलवट नहीं आ रही है, तो हम्म. ये वो कहते हैं कि अगर कुछ भी नहीं लिख के आओगे, सफाई के मार्क्स तो मिल ही जाएंगे ना आपको। हाँ ना. सही बात है. तो उसको क्या बोलोगे आप? फास्टिडियस बोलोगे? नहीं नहीं, मैं तो नहीं फास्टिडियस बोलूंगा, मैं तो ये बोलूंगा कि बच्चा बिल्कुल ही उसके में हरकत ही नहीं है किसी तरह की। बच्चे तो शरारती होने चाहिए ऐसे। बचपना नहीं है उसमें ना, कहीं से भी बचपना नहीं फील हो रहा। चंचल नहीं है. बहुत अच्छा. हाँ। See, this is how you should think. है ना? आपका नाम क्या डॉक्टर? डॉक्टर राजीव जैन। राजीव. डॉक्टर बहुत राजीव अच्छा. जैन। बहुत अच्छा राजीव. बहुत अच्छा. माशाल्लाह. गॉड ब्लेस यू. दिस इज हाउ यू शुड थिंक. मतलब बच्चे में क्या एक्सपेक्टेड है ना? बच्चे में शरारत एक्सपेक्टेड है. बच्चे में बचपना एक्सपेक्टेड है. ये इसमें है. कुछ जगह पर होगा बचपना, लेकिन यहाँ पर नहीं है ना. जो चाहिए वहां नहीं है ना. है ना? ये चीज को आप फोकस करो. वेरी गुड. और कोई? एनीबडी एल्स? सो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस राजीव? हाँ जी सर। क्या इससे क्या समझा फिर आपको? मुझे तो ये लगा माइंड डल है, उतना एक्टिव एक्टिव नहीं है माइंड। स्टिल स्टिलनेस नजर आ रही है। हाँ हाँ इसको हाँ हम हाँ. कहते हैं ना कि वेजिटेटिव फेस, वेजिटेटिव माइंड है। यूथ उसमें वो नहीं है, नहीं क्या? हाँ, एक चंचलता, रेस्टलेसनेस, एक स्माइल जैसे आपने फेस भी दिखाया, एक वो बड़ा सा फेस लग रहा है, एक फेस के ऊपर ना जैसे एक अफेक्शनेट फीलिंग आती है, वो नहीं है बच्चों में जो होती है। मुझे तो जो अभी तक समझ आया। ओके. राइट. बढ़िया. अच्छा सर है. इसको क्या प्रिकॉसिटी लेंगे? नहीं, आप बताओ जी. मैं तो बताने वाला हूँ क्या है. अभी आप क्या समझ रहे हो? आपको अगर प्रिकॉसिटी लग रहा तो आप प्रिकॉसिटी बोलो. कोई इशू नहीं है मुझे. आप बोलो क्या लग. अभी यू फील. आप बताओ. हेलो. हाँ जी सर, मतलब मुझे लगा कि जैसे बच्चों की तरह वो नहीं है प्रॉपर टू, तभी मैंने बोला था प्रॉपर टू। और मतलब जैसे बड़ों की तरह ही बहुत स्पेसिफिक है, उसके लिए चीजों को भी बड़े नीटली रख रहा है। हम्म, बढ़िया. और एक देखते हैं, ठीक है? ओके. इसको भी आप दिमाग में डालो पूरा. हाउ द मैन इज सिटिंग. एवरीथिंग देख लिया सब लोगों ने? आई विल टर्न द कैमरा टू मी. ओके. मानसी, बाद में बेटा यूट्यूब पे डालेंगे तो इनको खाली ये कर लेना प्लीज. हाँ सर। तेरे को इनके स्नैपशॉट भेज दूंगा मैं तेरे को. है ना? ठीक है. ये एक केस देखो, आपको बता देता हूँ. ये और भी मजा आ जाएगा. ये देखो आप. दिस मैन हैज डायबिटीज. ऑलराइट. ये दिख गया? ओके. सो टू केसेस. ऐसा. इसका स्नैपशॉट भेज देता बेटा मानसी को. देखो. सो ठीक है. तारिक, जब आप बोलोगे ना तो एक साथ पूरा बोल दो. ये जो बीच बीच में आप डाल रहे हो ना, ये डिस्टर्ब होता है. एक साथ जो भी बोलना है ढंग से लिख लो और फिर बोलो. है ना? आप इफ यू कीप पोस्टिंग वन थिंग देन दैट विल टेक अवे माय. डॉक्टर तारिक जुबैर, आई एम टेलिंग यू समथिंग. आप एक साथ में सारी चीजें बोलो जब मैं बोलूंगा तब. एक 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 वन मोर केस आई विल शो यू. नाउ व्हाट डिड यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस फोटो गाइस? यस. अकॉर्डिंगली जितनी सीरियस। हाँ सर, एज ये के देखो. अकॉर्डिंग। एक ये. एक ये बच्चा, ये भी देख लो आप, ताकि आपको और एक अंदाजा आ जाएगा क्या है.
ठीक है, सिमिलैरिटी दिख रही दोनों में? ऐसा लग रहा है ना कि इनका ही वर्जन है बुढ़ापे का, राइट? वन मोर आई शो। अभी एक बच्चा हो गया, एक एक करीब 55 का हो गया, एक ये थोड़ा सा एक 35-40 का है। अंडरस्टूड? एक छोटा बच्चा, एक सीरियस वाला, और एक लाइवली जो हंस रहा है, उसका स्माइल कैप्चर करके मैं भेज दिया आपको। ठीक है, तो ये 3 हो गए। हाँ जी, अब बोलिए। सिर्फ सबसे एक रिक्वेस्ट है कि कोई भी स्क्रीनशॉट मत लीजिए। अभी यूट्यूब पर हम दोबारा लेक्चर पोस्ट करेंगे, उसका हम बता देंगे सारा। यस, लेट्स स्टार्ट। जब आप बोलोगे तो अनम्यूट करो, जब मेरा चलता हो तो प्लीज म्यूट कर लिया। हाँ जी, प्लीज। कोणतरी अनम्यूट है, प्रणीता बंद पे बैठा है। हाँ, बोलिए। Now please tell me, let us understand all 3 stages of this remedy. So बताइए। हेलो, और कोई? हेलो, nobody want to speak anything? हेलो, सर मैं बोलूँ क्या? हाँ बोल बापू बोल। क्लिंगिंग पर्सन और फर्नीचर तो पूरा टेबल पर आया है, तो 2 पेशेंट होते हैं एक बीच एक में से। केस का देखते हैं। हाँ, ओके ओके। पहले हाँ और हाँ बोल। और हेयर बार्निश एंड पिपलिंग, जल्दी बाल गिर गए ना उसके। और चाइल्डिश बिहेवियर, उनका हंसना बिहेवियर एकदम। नहीं, चाइल्डिश का है, इनोसेंट स्माइलिंग, इज वेरी हैप्पीली स्माइलिंग। दैट मैन इज नो मोर नाउ, इज माय फ्रेंड। हाँ, टेल मी। और कोई? एनीबडी एल्स? और कोई? हेलो, आई हैव like hundreds of cases of this. Very frequently, I have at least one prescription of this remedy at least once in a month. At least once in a month. Okay, quite frequently, not once in a month, many, but at least once in a month, I get to see one case of this remedy, ranging from coryza, diabetes to hypertension to depression to whatnot. Okay, tell me. So, tidy is right. Hello, correct? तो बच्चे में tidiness very much. So, and as everybody pointed out very well, that childishness, that innocence, है ना? तो innocence को हम लोग क्या rubric लेते हैं? Do you take childish or do you take like what exactly? Hello, अफेक्शनेट। नाइव नाइव naive. Naive मतलब क्या? भोला नहीं, नौसिखिया और भोला होता है। नहीं, नौसिखिया और भोला नहीं, दोनों में फर्क है। नौसिखिया अलग, भोला अलग। अब जैसे आप डॉक्टर बन गए हो, नए नए हो, आपके पास में डिग्री है, लेकिन आपके पास में एक्सपीरियंस नहीं है, दैट इज नाइव। नया नया शुरुआत करने वाला, नोवाइस, है ना? दैट्स नोवाइस, राइट? आई नो रूब्रिक पूछ रहा हूं मैं, विमल भाई। मासूम, हाँ, मासूम भी है माशाल्लाह। और दूसरा एक रूब्रिक है जो नाइव का बहुत करीबी दोस्त, कौन है, कोई बताएगा? क्रेडुलस। क्रेडिबल, क्रेडुलस का मतलब क्या? किसी पे भी जल्दी से भरोसा रखने वाला। तो भोले का मतलब क्या होता है? भोला नाइफ का मतलब ऐसा है, भरोसा रखता है, लेकिन एक बार अगर उसको पता चल गया कि यहाँ पे अपने को प्रॉब्लम हो सकती है, तो अगली बार वो सीख लेता है नाइफ में। अगली ओके, बार वो गलती नहीं करता है, थोड़ा संभल के रहता है।
आपने ऐसे डॉक्टर देखे कि एक ही गलती बार बार करते हैं? हम सभी हैं। है ना? यस सर, तो नाइव का होती है। मतलब ये नहीं है, नाइव का मतलब ये नहीं कि भरोसा कर लेता और फिर पता चलने पर वो, दैट इज नाइव बट इंटेलिजेंट वे, वो फट से जान जाता। नाइव मतलब बट इंटेलिजेंट वे, ऐसा रूब्रिक है ना। नाइव बट वेरी इंटेलिजेंट, वो अलग रूब्रिक है, बराबर ना? सिंपल, इनोसेंट, अनकॉम्प्लिकेटेड, ट्रस्ट बट नॉट वर्डली इनफ, नॉट वर्डली इनफ। क्रेडुलस का मतलब क्या? देखो, भोला मतलब भोला इंसान वो होता है जो किसी पर भी भरोसा करे। हेलो, वो सीखता यस, ही नहीं है, वो सीखना ही नहीं चाहता, होता है जान दो। भोले मतलब भोले वाले का क्या होता है? जान दो। हाँ ना? दैट इज भोला। हेलो, तो क्रेडुलस मतलब भोला, कच्चे कान का, बराबर ना? मान लेता है, चलो, दैट इज क्रेडुलस। और नाइव मतलब नौ सीखिए। सर मुझे एक्सपीरियंस नहीं है ना, होम्योपैथी पहली बार ले रहा हूँ। सर बीमारी का कुछ पता ही नहीं, कैंसर हमारे फैमिली में पहली बार आया सर, तो कैसे करना है, क्या करना है, हमको पता ही नहीं। तो हमारे डॉक्टर ने बोला ऑपरेशन करना पड़ेगा। हेलो, जी सर, सुन रहे हैं। बाद में पता चला सर, हमको मालूम ही नहीं कि होम्योपैथी होती है, ये होता है, होम्योपैथी में ये होता है। ये हो गया नाइव। और क्रेडुलस मतलब क्या है? कि ऑपरेशन के लिए बोला, डॉक्टर के पास में ऑपरेशन को गया, और रास्ते में उसको किसी ने बोला कि अरे तुम पागल हो क्या, ऑपरेशन कर रहे हो, चलो हमारे इधर एक बाबा है, वहां जाते हैं। वो बाबा की इधर जा रहे हैं, फिर उसको गाड़ी में कोई मिल रहा है वहां पर बस स्टैंड पे, अरे वो बहुत भोंदू बाबा है, उसके पास मत जा, एक काम कर, हमारे गांव में एक बहुत अच्छा डॉक्टर है, डिग्री नहीं है लेकिन उसके पास। समझ रहे हो? तो क्रेडुलस का मतलब होता है रेडी टू बिलीव, वो होता है भोला। और नाइव मतलब तजुर्बा नहीं है, बस। ठीक है, इसमें भरोसे का विषय नहीं आता। क्रेडुलस में भरोसे का विषय आता है, नाइव में भरोसे का विषय नहीं आता। नाइव में नौ सीखिया शब्द क्या है? नौ सीखिया, सीखिए। सीखना शब्द आता है। ये समझो आप, प्लीज समझे? गिव मी सेकंड। ये आप समझ में आया आपके अभी, नाइव और इसका फर्क? तो यस सर। भोला आपको है, कोशिश नहीं थी वो, क्या है वो? उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा उसके चश्मा। अंदर वो है ना भोला, हाँ, वो वो ऐसा मोटा, दैट इज क्रेडुलस, दैट इज भोला। ओके, दैट्स नॉट नाइव। अंडरस्टूड? हेलो, जैसे यस सर। अपन अपन नाइव को बोलते तू क्या दूध पीता बच्चा है, इतना बड़ा हो गया, समझ में नहीं आता है तेरे? हाँ यार, मुझे पता ही नहीं, कोई था ही नहीं सिखाने वाला। आपको और एक बात बताता हूँ, नाइव वालों का और एक नया वर्जन में आपको बताता हूँ, पता नहीं कहीं है कि नहीं, ये मैंने बहुत करीब से ये चीज को देखा। हमको कोई था ही नहीं सिखाने वाला, हमको कोई था ही नहीं सिखाने वाला, हम घर में ही बंधे रहे। अब देखो ये चले गए, अब कैसे जिए, पता ही नहीं। समझ रहे हो? फिर ये जो संभल संभल के कदम डालते हैं और दुनियादारी सीखते हैं ना, वो होते हैं नाइव। समझ गए? छोटे बच्चों में नाइव ये रूब्रिक इस्तेमाल मत करो। समझ रहे हो? बिल्कुल मत यूज करो। अगर आपको क्या कहते हैं उसको, अ, गलत नहीं जाना है, तो डोंट यूज दिस रूब्रिक इन चाइल्ड चिल्ड्रन। नाइव एंड क्रेडुलस, डू नॉट यूज दिस इन चिल्ड्रन। use it in an age where your intellect is to be used. Hello, are you getting me? Because this rubric is very dangerous. So credulous is like this. Okay, now moving forward again, हम लोग क्या करेंगे, बच्चे को समझेंगे पहले।
हाँ? तो बच्चे में क्या आ गया, टाइडी आ गया, और थोड़ा सा जैसे बताया कि उसका थोड़ा सा कम, बराबर। फिर वो जो बैठा हुआ है, ये तीनों में सिमिलरिटी क्या है, खास करके जो मिडिल एज और जो ये बताया मैंने, उनमें दोनों क्या सिमिलरिटी है, जो बताया मैंने बीच वाला जो यंग बताया और जो ओल्ड एज बताया, दोनों में सिमिलरिटी क्या है, बॉल्डनेस, बाल्डनेस, हाँ, फ्रंटल बाल्डनेस। है ना। यस सर। ये सबको समझ रहा है ना। और चश्मा इनका देखा कैसा है, एकदम इनका अगर आप देखोगे जो हंस रहे हैं ये, चश्मा कैसा है देखा आपने? एकदम कैसा चश्मा है, वो रिमलेस वाला है, आधा रिम, बराबर ना। तो ज्यादातर कौन यूज करते हैं ऐसा, ऊपर ये और नीचे रिमलेस, ऐसा कौन यूज करता है ज्यादातर, हेलो, इंटेलेक्चुअल लोग। हाँ, हेलो, एग्जीक्यूटिव। तो क्या बोले, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव है ना, एग्जीक्यूटिव, बट कौन से एग्जीक्यूटिव, जो ग्राउंड पे काम करते हैं वो, या जो कुर्सी टेबल पर बैठते हैं वो, प्रोफेशनल। प्रोफेशनल। तो व्हाट इज द सेकंड रूब्रिक दैट इज लाइकली, हेलो, जो प्रोफेशनल लोगों की तरह अपीयरेंस रखते हैं, है क्या, लेकिन वो वैसे है क्या, किस तरीके से बैठे बैठे हैं, नहीं है ना, पर फिर भी नहीं अपने लग आप को प्रोफेशनल लोगों की जैसा अगर आप अटायर कर रहे हो, अब मैं देखो, मैं डॉक्टर हूँ, सीनियर हूँ, माशाल्लाह से एमडी हूँ, पर मैं कैसे बैठा हूँ घर में मेरे बेड पे, क्या है क्या, कहीं भी नहीं है ये, जबकि मैं हूँ प्रोफेशनल, फिर भी मैं वैसा नहीं रह रहा, बिकॉज आई नो कि हु आई एम, ओके, आई डोंट नीड ऑल दिस थिंग्स टू प्रूव दैट हु हिपोक्रेसी है क्या? आई एम। हाँ बेटा, हिपोक्रेसी है क्या सर? Affectation, मतलब sir. Affectation. नहीं बेटा, affectation is in behavior, Okay. not in appearance. Hello, are you Yes, sir. getting me? Yes, sir. यस सर। नहीं, not imitation, Aditya. Intellectual then. This is intellectual. Yes. समझा, तेरे को ऐसा करने का मन हुआ क्या, यस, वेरी गुड, अब बोलो, और क्या लिया, बच्चा बात नहीं कर रहा, लोग ले नहीं रहे यार, सादी चीज नहीं ले रहे आप, Timidity. Timidity. टिमिडिटी अबाउट appearing in public, सिंपल Appear ना, public. Yes, sir. सिंपल। तो क्या आ रहा है, व्हाट रेमेडी इज टिमिड, टाइडी, टिमिड भी है टाइडी भी है। प्रॉपर टू इसलिए नहीं लिया मैंने क्योंकि प्रॉपर टू जो होता है ना, वो बिहेवियर में आता है, हेलो, Hmm. रिमेम्बर दिस थिंग, बट फिर भी यू कैन टेक प्रॉपर टू एज फार एज क्लोथिंग एंड उसका जो कंडक्ट है उसमें। तो ऐसे बच्चे भी लाइक किए जाते हैं ना टीचर से कि है ये ज्यादा कुछ होशियार नहीं है लेकिन अच्छा है, मतलब उसके बारे में कुछ कंप्लेन नहीं आई, उसका कंडक्ट एकदम ऐसा रहेगा, पिक एंड पैक रहेगा, नीट एंड टाइडी रहेगा, है ना। होते हैं ना कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, कई ऐसे ऑफिसर्स होते हैं, अगरचे आप वपू काळे एक बहुत अच्छे स्टैंड अप कॉमेडियन हो चुके हैं मराठी में, उनकी स्टोरीज में बहुत अच्छे दिए उन्होंने, बैंकर्स का बहुत अच्छा दिया है कि मुझे हमेशा बोला, उन्होंने बोला वपू काळे भी बैंक में काम करते थे, शायद महाराष्ट्र कोई बैंक में थे, तो उन्होंने बोला कि मुझे हमेशा प्रमोशन में प्रॉब्लम आता था, क्यों, क्योंकि मेरे काम में गलतियां आती थी, लेकिन मेरे बाजू में एक थे, का कुछ नाम है कुलकर्णी वगैरह, कुछ नाम उन्होंने लिया, तो उनको कभी प्रॉब्लम नहीं आया, उनको जो वक्त पे प्रमोशन मिलता था मिलता गया, क्योंकि उनके काम में कोई तकरार आई ही नहीं, देयर वाज नो, मतलब गलत काम किया ऐसा आया ही नहीं। तो मैंने उनको पूछा बाद में कि भाई क्यों आपको प्रमोशन वक्त पे मिलता, अगर आपके काम में गलतियां क्यों नहीं आई, तो उन्होंने बोला जो भी काम में बड़ी जिम्मेदारी रहती थी, जो भी काम में रिस्क रहती थी, वो फाइल में सीधा बॉस की तरफ जाने दी, मैंने कभी वो काम किया ही नहीं, ऑलवेज आई रेफर दैट, ये जब मैं बॉस भी बना
तो मैंने उसको लिख दिया कि सेंड टू एक्सपर्ट कमिटी और ओपिनियन। तो जो काम ही नहीं करते उनके काम में नुक्स ही नहीं निकलता, आप उनके काम में गलतियां ही नहीं ढूंढ सकते। आर यू गेटिंग मी? ये कितना सॉलिड है ये। तो तब मेरे को समझ में आया कि हाँ यार, सरकारी ऑफिसों के अंदर क्यों लोग फाइल, जहां फाइल उधर गई एक्सपर्ट कमेटी के पास गई। गवर्नमेंट भी अगर आप देखोगे, गवर्नमेंट भी आप देखोगे कि हाँ इसके ऊपर हमने कमिटी बिठाई है, तो कमिटी विल डिसाइड, राइट? द कमिटी विल गिव द ओपिनियन एंड देन विल गिव द डिसीजन। हेलो, आर यू गेटिंग मी? हेलो, ये यस समझ सर, रहे हो आप? यस इसको क्या कहोगे आप? ये बिहेवियर को आप क्या कहोगे? रिस्क नहीं इंटेलेक्चुअल। लेना चाहता, कुछ भी हाँ बेटा, कुछ भी हाँ, रिस्क नहीं लेना चाहता है। ओके। और तो कैसे, escaping, लेकिन हाउ, हाउ क्या है, हाउ क्या है? escaping, Escaping, and very good, escape, and what? But how is escaping? किस तरीके से escape कर? using brain, Using brain, of course. दिमाग What else? चला के एकदम हाँ, स्मार्ट, एकदम स्मार्टली बोल सकते हैं, स्मार्टली। smart तो नहीं, smart नहीं. That's not called smart. That is what you girls actually are taking this wrong thing as smartness. Smartness is not that. That's not smartness. Smart is different. सर नैरो माइंड बोल सकते हैं, वो एक ही लाइन में चलता है। नहीं, नहीं। narrow mind is thinking ना बेटा। हाँ, एक ही लाइन में चलना लेकिन नॉट नैरो। तू बराइटा के सब रूबिक मत घुसाने की कोशिश करा बीच के अंदर। और कोई सोनल बोल रही थी ना इसके पहले, इससे पहले हाँ सर। सोनल, और कुछ बेटा अपार्ट फ्रॉम स्मार्ट? हाउ इज इट डूइंग? अरे वो क्या कर रहा है, किसी की तरफ भेज रहा है, मतलब क्या कर रहा है वो? अपना काम कम कर रहे हैं, अपना काम दूसरों काम के कर रहा ऊपर है किस थोप रहे तरीके से? वेल ऑर्गेनाइज्ड बोल सकते हैं उसको। Come on. नहीं, अच्छा चलो, और एक एग्जांपल आपको देता शाणा, हूँ। हाँ बोलो। ये शाणा हम है लोग, शाणा। हाँ चाणा है, पर किस तरीके से चाणा? वेरी गुड। मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरे दोस्त लोग है ना, क्या करते हैं ना कि यार पार्टी जाना है यार, तो जब उनका टर्न आता है ना पार्टी देने का, तो क्या बोलते पता है? यार बीवी नहीं मान रही, पता है मेरी बीवी बहुत डेंजर है। ये क्या है? सर समझ? हिपोक्रेसी। escape attempts to दोनों भी सेम है ना, ये बिहेवियर भी सेम है ना। अपने आप को बचाना। escape attempts to एस्केप अटेम्प्ट तो हो गया बेटा, आगे क्या? अपने आप को कैसे? बचाता है। वो हिपोक्रेसी, भी लो ना। हाँ, हिपोक्रेसी, क्या हिपोक्रेसी। बेटा? हिपोक्रेसी थोड़ा सा एक्सट्रीम हो जाए। बोलो। अरे बीवी के पीछे छुप रहा है ना यार, तुम लोग सादी भाषा में क्यों नहीं हाइडिंग, बात? हाइडिंग। नहीं, व्हाई आर यू थिंकिंग इन इंग्लिश? मैं जब हिंदी में पढ़ा रहा हूँ, तो यू फर्स्ट थिंक इन हिंदी, वॉट एवर इज योर मदर टंग, वेदर इट इज जैन और गुजराती और स्पेनिश और यार अपन क्या बोलेंगे, बेटी बीवी के पीछे छुप रहा है, बीवी के आड़े आके अपनी जिम्मेदारी नहीं बराबर ना? लेते। हाँ। क्योंकि लुक्खा है, escaping and hiding. क्यों लुक्खा है, अपन ऐसा बोलेंगे ना। मैं क्यों बोलता हूँ सादी भाषा में, क्यों बोलने का? भाई प्रूवर्स ने कैसी भाषा में बोला हुआ है? शादी। सादी भाषा में बोला है ना, तभी तो अब्यूजिंग वर्ड आया। हेलो, ये ना लुक्खा है यार, ये सारा इंसान किस तरीके से बोलेगा? अरे क्या लगता है, अरे ऑफिसर यू आर सपोज टू ब्लडी डिसाइड। अब क्या एक्सपर्ट, देन हु आर यू? इफ यू आर द मैनेजर, ब्लडी इफ यू आर द होम मिनिस्टर, then why do you need a committee? Then why do you need the bloody home minister to decide? Hello? Or why do you need the whatever ministry you call, say supposing irrigation minister? Let's take for it. Why do you need the expert committee? You already have a secretary, right? Who is an expert already? He is a IAS officer. What else you require? Hello? Are you getting me? मतलब तुम उस कुर्सी के लायक नहीं हो, एक, या तुम किसी और के पीछे छुप रहे हो।
You are just buying time and you are trying to find a scapegoat or an excuse, right? Hello, this is Yes. hiding himself. Are you getting me? This is hiding himself and escape attempts. ये रूब्रिक आप याद रखिए, बहुत काम की चीज है ये दोनों का कॉम्बिनेशन. आपको पता है मैं कॉम्बिनेशन पढ़ा था ज्यादा था, है ना? जैसे हमने कल लेक्चर में वो कॉम्बिनेशन सीखा था, एफेक्टेशन प्लस कौन सा देखा था हमने कल के लेक्चर में? Content. कंटेंट कंटेंट और एफेक्टेशन का हमने. आज ये नया कॉम्बिनेशन आप सीख के जाओ जो आपको कॉमन लाइफ में बहुत काम आएगा. देयर आर ओनली 26 ऑड रेमेडीज उसके अंदर की. अगर से तुमने अनकॉमन फाल्को और लैक ह्यूमैनम लाइमस्टोन और मेरी लोटस वगैरह निकाल दिया तो देयर आर हार्डली 20 रेमेडीज एस्केप अटेम्प्ट्स टू एंड हाइडिंग हिमसेल्फ. सर ये हमेशा ऐसा करता, कुछ ना कुछ बहाना कर देता और टाल देता. ऐसी कितनी केसेस आती है आपके पास बहाना करके टाल देने वाले लोग? आपको जनजीवन रोज मिलेंगे ऐसे लोग, बहाना करके टालने वाला. एस्केप अटेम्प्ट्स टू प्लस हाइडिंग हिमसेल्फ. अपन क्या रूब्रिक लेते हैं? झूठ बोल रहा है, लायर. नहीं, बहाना बनाना और झूठ बोलने में फर्क है. तो बहाना बनाना मतलब एस्केप अटेम्प्ट्स टू प्लस हाइडिंग हिमसेल्फ. हेलो, और उसके अंदर तुमको लगा कि यार ये लुक्खा है, मेहंदी नहीं ले रहा है, तो क्या लोगे? हेलो, कावर्डाइज. करेक्ट ना? हेलो, बोलना भेंडी बीवी Yes, को, sir. सारे पार्टी को हम पीने वाले हैं, इसके पहले भी हम लोग गए, आज मेरा टर्न आया है, हमने 8 पार्टीज कर चुके हैं, अभी 9वां मेरा टर्न है, शुक्र अदा कर, 8 बार में पिया हूँ. ठीक है, तू बोलती तो मैं पीऊंगा नहीं, या कम पीऊंगा, या वाइन पीऊंगा, या थ्रिप ब्रिजर पीऊंगा, या फ्रूट बियर पीऊंगा. अगर मेरे जैसा रहे तो मैं बोलूंगा भैया अल्कोहल नहीं चलता, मैं फ्रूट बियर पीऊंगा. लेकिन मेरे को जाना है पार्टी में यार, मेरे फ्रेंड्स. ये क्या बात हुई? और बीवी मानती है, ऐसा थोड़ी होता है. बीवी मतलब कोई राक्षस थोड़ी ना है. हेलो, या माँ मतलब कोई राक्षस थोड़ी ना है. उल्टा वो बोलते हैं कि हाँ सो ऑनेस्ट, ठीक है जाओ, लेकिन उल्टा ऐसा बोलेंगे माशाल्लाह से कुछ बीवी है तो कम पियो प्लीज, ज्यादा मत पियो, है ना? अच्छी वाली पियो, खराब मत पियो. तो मुझे बजट मैनेज करना पड़ेगा, पहले से जमा करके रखा है ना, तो फिर या बोल दो नेक्स्ट मंथ देती हूँ, मैं बजट मैनेज करती हूँ, नेक्स्ट मंथ दे दो पार्टी. हेलो, इतनी सी बात बोलनी है, आप बहुत ज्यादा बोलना है क्या? क्यों नहीं बोल पा रहा? कावर्ड. समझ रहे हो? तो अगर लुक्खा उसके अंदर आपको कावर्डाइज दिख रही तो एस्केप अटेम्प्ट्स टू हाइडिंग हिमसेल्फ, कावर्डाइज. तो जो कावर्ड है और बहाने बना रहा है, अगर ये 3 आप लोगे तो यू लैंड अप ओनली विथ 13 रेमेडीज. कैन यू बिलीव दैट? एस्केप अटेम्प्ट्स टू हाइडिंग हिमसेल्फ एंड कावर्डाइज. कितना इजी है. दिस इज एग्जैक्टली कॉल्ड एज इन वेरी मॉडर्न टर्मिनोलॉजी. सोनल, व्हाट इज दिस कॉल्ड बेटा? आप लोग के न्यू एज वाले बच्चे बताओ, या जो बहुत अंग्रेजी से वाकिफ है बहुत ज्यादा. हेलो, जो डे टू डे लाइफ में अंग्रेजी का इस्तेमाल करते हैं और अपने आप को, सॉरी, हाँ बोलिए. दिस इज ओनली कॉल्ड इन सो कॉल्ड मॉडर्न लैंग्वेज, दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी. हेलो गाइस, हेलो गाइस, राइट ना? Sir, hypocrisy नहीं क्या? नहीं, No. दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी, बट दिस इज एक्चुअली Diplomacy. हिपोक्रेसी. Yes. This This is is actually hypocrisy, and not in all cases though. बट ये अगर कथनी और करनी में फर्क आ जाए तो हिपोक्रेसी में जाएगा. yes, yes. और ये अगर उसमें ये नहीं है तो इसको डिप्लोमेसी कहा जाता है. बट दिस इज नॉट डिप्लोमेसी, दिस इज एक्चुअली एस्केप अटेम्प्ट्स टू हाइडिंग हिमसेल्फ एंड कावर्डाइज. अब डिप्लोमेटिक करके रूब्रिक दिया हुआ है, उसके अंदर 2 ही लोग हैं, लाइको और मैगमूर है. और ये अगर आप कॉम्बिनेशन लोगे तो इसके अंदर लाइको आ रहा है, लेकिन लाइको में हाइडिंग हिमसेल्फ नहीं है. समझ रहे हो ना? हाय सर, है क्या? हाइडिंग हिमसेल्फ है. हाय सर, वेरी गुड. तो लाइको भी लाइको आ दो. रहा है, हाँ, लाइको भी आ रहा है. हाय वेरी सर, गुड, है ना? तो मैगमूर आ रहा है कि बेटा नहीं ना इसमें? तो दिस इज कॉल्ड डिप्लोमेसी इन डे टू मैगमोन डे. नहीं है. मैग भी नहीं, कोई मैग. समझ रहे हो ये बात आप? हेलो, ये जो फाइनल होते हैं ना, क्या होता है ना,
सहगल सर ने हमको, महागुरु सहगल सर ने हमको सिखाया है, माइंड का तरीका सिखाया है। अब आप ये एक्सपेक्ट करोगे कि सारा बड़े सहगल सर ने, या फिर संजय सहगल सर, या फिर मोंती सर, या गुप्ता सर, या जो भी अपने चाइल्डहुड कोच चुके, खास करके सहगल सर का नाम मैं लेना चाहता हूँ। उन्होंने माइंड अपने को दिया है, एक डायरेक्शन दिया है। आप उसको ब्लाइंडली कुछ भी वर्जन और इसमें उसमें मत अटकाओ, है ना। या केन साहब ने अपने को माइंड समझने का दिया है, डिल्यूजन्स वगैरह क्यों लिखे डॉक्टर केन ने? बिकॉज ही वाज यूजिंग इट। उनकी तो मदर टंग है यार अंग्रेजी, उनके लिए आसान था। और हमको उसको इंडियन इसमें कन्वर्ट करना, क्योंकि हमारे इधर प्रूविंग तो हुई नहीं है हिंदी में, और हुई भी है तो अब जैसे मैंने भी प्रूविंग किया तो मैं लिखा तो अंग्रेजी में ही हूँ उसको, हालांकि मेरे पास हिंदी में लिखे हुए कुछ चीजें, बट हिंदी में मटेरियलिटी का पॉसिबल नहीं। भारत के अंदर 40-50 भाषाएं आती है, तो कहाँ से लिखेंगे? हेलो, आर यू गेटिंग मी गाइस? ये समझ में आया आपके? सो कॉल्ड डिप्लोमेसी सिंपल है। तो और ये सारा बिहेवियर जो है ना, ये ऑफिस में करने वाले लोगों को कहते हैं, बोलो, इस तरीके का बिहेवियर जिनका होता है ना, ज्यादातर ऐसे लोग होते हैं, हेलो, ऐसे बैंकर्स, ऐसे टीचर्स आपने देखे ना, ये ज्यादातर इंटेलेक्चुअल होते हैं, बराबर? हेलो, तो इफ यू एड इंटेलेक्चुअल टू दिस, then you come, then you narrow down the search again to only 8 remedies. Escape attempts to hiding himself, covered eyes, intellectual. Right? Are you getting me, guys? And then you add tidy to that, then so you'll end up with very few remedies. Hello? Are you getting me? Hello? Can you hear me, guys? Yes. अब ये बंदा सब के सब आपको सारे लोगों में मिलेंगे क्या? सारे रूब्रिक सब लोगों में मिलेंगे क्या? नहीं। लेकिन बेसिक क्वालिटी जो मैं आपको बताया, हाइडिंग, एस्केप, ये कावर्ड आइज, ये चीजें धीरे धीरे ये लोग आपसे खुलेंगे, बराबर ना? धीरे धीरे आपसे ये लोग खुलने लगते हैं। तो वेरी राइटली अंडरस्टूड, दिस इज बराइटा। बट नाउ इफ यू आर गोइंग टू इंटेलेक्चुअल, बराइटा कार्ब इज एब्सेंट, राइट? कंप्लीट में है सर, कंप्लीट डायनेमिक में आ गया बराइटा। कंप्लीट में है से बराइटा करो। काय में? इंटेलेक्चुअल में ना? कंप्लीट डायनेमिक, कंप्लीट डायनेमिक। हाँ, किसका एडिशन है? किसका एडिशन? ये जो सो कॉल्ड स्मार्ट प्ले है ना, ये बराइटा काम नहीं कर सकता। ये स्मार्ट प्ले करने के लिए जो ना बराइटा को जोड़ लगती है। बराइटा सेल्फ है उसमें। हाँ? बोगर का है सर, बोगर। इंटेलेक्चुअल में बोगर का है, बोगर। बराइटा काब क्या? यस सर, कंप्लीट। अच्छा, बोगर का फाइन। ये सब स्मार्ट प्ले करने के लिए जो है ना, हाँ, उसको जोड़ लगेगी सल्फर की, क्योंकि इतना स्मूथ मनूवर करना जो है ना, वो करने के लिए उसको लगेगा जोड़ीदार लगेगा। क्योंकि ये क्या है जो इस तरीके से कर दे रहा है कि अब तक एक्सपर्ट का नहीं आया है तो मैं नहीं कर पा रहा। ये क्या है ये? हेलो? या इस तरीके का स्मार्ट प्ले करके, दिस इज नॉट स्मार्टनेस डार्लिंग, दिस इज कॉल्ड स्मार्ट प्ले। रिमेंबर, दिस इज नॉट स्मार्टनेस, प्लीज रिमेंबर अगेन। क्योंकि एज फार एज आई अंडरस्टैंड, स्मार्टनेस इज अ पॉजिटिव क्वालिटी एंड स्मार्ट प्ले is a cunning activity. Please remember. Yes. Please remember. Okay? Yes. जो आप जिसको सो कॉल्ड आप स्मार्ट बोलते हैं ना, वो सेल्फिश रहते। यही प्रॉब्लम होता है ना कि आप लोगों का क्या होता है ना, आजकल की जनता का मैं देख रहा हूँ ना, कि किसने काला धन भी कमाया हुआ है, या कोई किसी और की जगह पर घुस जा रहा है, जो डिजर्व कर रहा है उसके बजाय आगे जा रहा है, आप उसको स्मार्ट बोलते हो। नो, दैट इज नॉट स्मार्ट।
That is cunning, Negatively. that is selfish. Please remember this. और फिर पता नहीं, अब ये तो शायद दुनिया का दस्तूर हो गया, फिर लड़कियां ऐसे लड़कों की तरफ जाती है, माँ बाप भी ऐसे लोगों को लड़की दे देते हैं, या ऐसे लोगों को ज्यादातर लोग पसंद करने लग जाते हैं। ऐसे ही लोग पॉलिटिक्स में भी आगे जाते हैं, ऐसे लोग अवार्ड भी लेते हैं। ज्यादातर ये जितने भी अवार्ड मिलते हैं ना, ये उसके अंदर ज्यादातर ये स्मार्ट प्ले करने वाले ला जाते हैं। जो डिजर्विंग होते हैं वो बोलते हैं कि छोड़ो यार, हमको क्या करना है, अवार्ड क्या है, छोड़ो। समझ रहे हो ना? तो कई लोग तो अवार्ड भी वापस कर देते, कई लोग तो जाते भी नहीं लेने के लिए अवार्ड्स। जो असल में जिसने किया होता है ना, वो दे डोंट नीड अवार्ड, दे आर रिवॉर्डेड बाय अ वेरी गुड internal sense of bliss. Remember this. Hello, please remember this. जी सर। तो ये स्मार्ट का डेफिनेशन का मतलब सक्सेसफुल नहीं होता है। स्मार्ट जो आप बोल रहे हो ना, वो अपॉर्चुनिस्ट भी होता है। और एक वर्ड है मैं जो बोल रहा हूँ ना कि ये सांप की तरफ गया है, या साइन करने के लिए एक्सपर्ट कमेटी की तरफ गया है वगैरह, ये क्या है? इसको आप क्या करोगे? ये जो एक्शन है किसी की, उसको आप क्या करोगे? उसको आप क्या करोगे? बोलिए। हेलो, इसको कहते हैं मैनिपुलेशन। हेलो, खुद की चमड़ी बचा रहे हैं। हाँ, सेविंग योर स्किन and handling the situation and moving forward. Correct? Yes. This is called Yes, sir. manipulation. तो Yes. मैनिपुलेशन में बराइटा नहीं है। मैनिपुलेशन में जो बराइटा की चिपकने की ताकत रखने वाला जो है वो सेल्फ। देख लो, मैनिपुलेट है। तो उन्होंने बहुत अच्छा बोला कि आर्टिस्ट थे इसलिए मुझे पसंद है। तो मंडल की राजनीति जाके अब कमंडल की आएगी, ये तो उनका वर्ड प्ले होगा। उन्होंने एक चीज इतनी अच्छी बोली, उनको मुझे याद है, मुझे लगता सरदेसाई was taking his interview, then he said कि जनता दल तो पूरा बिखर गया। तो उन्होंने बोला कहाँ बिखर गया? जितने भी है सारे सितारे आसमान में चमक रहे। आप, उन्होंने नाम गिनवाया, लालू यादव, रामविलास पासवान, नीतीश कुमार, मायावती, और जितने भी लेफ्ट वाले थे जो एक साथ में थे वो बिखरे हुए थे, लेकिन सारे के सारे चमक रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर। Forget about the party. I'm not talking about the party thing. I am just, in fact, even Sushma Swaraj was a communist before, जो कि इतनी स्ट्रॉन्ग बीजेपी की लीडर बन के उभरी थी माशाल्लाह से, है ना? अब तो वो नहीं रही है। ये मैं चीजें आपको बता रहा हूँ। मतलब एक मैनेजर वो होता है, या एक लीडर वो होता है जो उसके नीचे के जितने भी सबऑर्डिनेट्स है ना, उनको लीडर बनाए। तो एक अच्छा टीचर, अब मेरे भी माशाल्लाह से इतने स्टूडेंट्स हैं कि जो अब माशाल्लाह से इंडिपेंडेंट स्पीकर बन रहे हैं अपनी अपनी जगहों पर चार पांच से। Are you getting me? Hello. That is how a leader is. Manipulator will be what, you know? Manipulator मतलब वो उनको अपनी अपनी जगहों पर ही रखे। Hello. That is the difference between a leader and a manipulator. Hello. Are you getting me? Hello. Yes, sir. Yes, sir. Okay. This is how Baraita self is. Okay. Baraita के साथ में जब सल्फर जुड़ता है तो वो इंटेलेक्चुअल बनता है। उसके बाद में फिर मैं आपको कुछ एक छोटी सी आज की केस जो मैंने यूनाइटेड माइंड पे डाला हूँ, वो केस भी बराइटा सेल्फ की है। ये जो बच्चे एकदम टाइडी होते हैं, प्रॉपर होते हैं, पढ़ाकू होते हैं, हार्ड वर्किंग होते हैं, वेरी वेरी हार्ड वर्किंग, रिमेंबर दैट बराइटा इज अ वेरी हार्ड वर्किंग। अगर हमने बुक्स को याद किया तो उसके अंदर हमने एक चीज पढ़ी थी कि अटेंटिव ऑफ ऑल द क्लासेस बट डजंट परफॉर्म वेल। बट जब बराइटा को सल्फर जुड़ जाता है ना, उसके अंदर वो एक इंटेलेक्चुअल जुड़ जाता है, उसको माँ बाप टीचर कोई अच्छा रहबर मिल जाता है, उसको राह दिखाने वाला मिल जाता है, कोई अच्छा गाइडिंग मिल जाता है। बराइटा थोड़े दिनों में अच्छा गाइड ढूंढ ही लेता है। रिमेंबर दिस, गाइड ढूंढ ही लेता है। अगरचे वो पढ़ाई करने लग गया, उसको अगर थोड़ा सा आईपीआर से ये रहा कि पढ़ाई कर, तो वो, और उसको सही एटमॉस्फेयर में अगर रखा और उसको बहुत ज्यादा गधा स्टूपिड नहीं बोला गया, थोड़ा सा अप्रिशिएशन अगर बराइटा को देने लगे,
तो बराइटा सल्फर को ढूंढ ही लेता है और उसके जोड़ में उसकी क्वालिटीज लेकर के बराइटा इंटेलेक्चुअल की तरफ चलने लग जाता, हार्ड वर्किंग बन जाता, सल्फर का परजियस उसमें आ जाता, बराइटा का जो उसका जो एक ग्रिट है वो रहता है, वो जो चलने लगेगा तो भाई मेरे को ये करना है, मुझे पता है मेरी कैपेसिटीज कितनी है, आई एम गुड इन मैथ्स, सो आई एम गुड टू परस्यू मैथ्स। यहाँ पर भैया अभी जॉब अपॉर्चुनिटीज टीचर की है, भैया मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से टीचर का काम हो सकता है, मैं डीएड कर लूंगा और किसी को पकड़ लूंगा, उसको 2 पैसे देके मैं काम पे लग जाऊं। हेलो, आई यू गेटिंग मी? दिस इज हाउ बराइटा प्रोग्रेसेस। या अपना भाई गुजर गया, फटाक से उसका जॉब ही ले ले, या भाई रिटायरमेंट पे आ रहा है तो भाई के हाथ पर पकड़ के उधर घुस जाएगा। हेलो, और उधर जाकर के इतना रहेगा कि एकदम प्रॉपरली सबका बन के सर्वाइल बन के, अगेन इफ यू सी सर्वाइल, सर्वाइल के अंदर बराइटा काम नहीं है, बराइटा सेल्फ है। तो आगे आगे करके उसकी जी हजूरी करके उसके सामने एकदम नमता लेके जिंदगी भर नमता ले, बीवी कुछ भी बोले, घर में भी बीवी के साथ में भी एकदम, मतलब बीवी बीमार पड़ी तो ये काम पर से आ जाएगा, खाना बनाएगा, और ऊपर से नहीं इतनी तकलीफ होती है, मेरे को खाना बनाने जाना पड़ता है सर, मैं आ जाता हूँ, उनसे तकलीफ नहीं देखी जाती, बीवी भी खुश, अरे मेरे को तो बहुत ध्यान रखते हैं। भले फिर वो उसको झोपड़ी दे या 1 BHK में रखे, 1 BHK में 2 बच्चे और ये खुद भी बड़े हो, हेलो, लेकिन ये खुश भी रखेगा उसको। आर यू गेटिंग मी? यार ये लड़का है, काम पे है, तो ये फिर वो एक जॉब पकड़ के चलने लग जाएगा, लेकिन उसके अगर सल्फर का ईगो उसके अंदर थोड़ा बढ़ गया, फिर ये वो थोड़ा सा सटक के जॉब, अगर उसको पहले दिमाग में आ गया कि ये नहीं हो रहा है, हालांकि उसके अंदर कैपेसिटी कम होती है, तो वो जॉब वो वाला नहीं ले पाता है, एकदम डिसीजन मेकिंग वाला, कहीं ना कहीं फेल होता है। आजकल कंपटीशन बहुत टाइट टेक है, वेरी कट थ्रोट कंपटीशन है, अगरचे वो उस फील्ड में चला जाए फिर ये अनएम्प्लॉयड हो जाता है और फिर घर में पड़ा रहेगा, फिर वो है ना एम्बेरसमेंट एंड देन टिमिडिटी, पब्लिक अपियरिंग इन वगैरह, वो सब चीजें उसकी आ जाएगी, क्योंकि साथ में थोड़ा ईगो आ गया। देखो ईगोटिज्म फिर क्या हो जाता है ना, उसमें सल्फर बाबा आ गए साथ में, तो ईगोटिज्म में बराइटा सल्फर आ गया, फिर वो डिक्टेटोरियल में भी चला जाता है ना, डिक्टेटोरियल में बराइटा सल्फर अगर आप देखोगे कंप्लीट डायनामिक्स में, तो डिक्टेटोरियल में भी बराइटा सल्फर आ जाता है। फिर वो सर्वाइल अल्टरनेटिंग विद, वो भी है, क्या है वो सर्वाइल अल्टरनेटिंग विद, व्हाट इज द रूब्रिक बापू कंप्लीट डायनामिक्स में, क्या है सर्वाइल अल्टरनेटिंग विद रिबेलियसनेस, बस अब मैं नहीं करूंगा, तो घर में इबादत भी करेगा, सर्वाइल अल्टरनेटिव विद रिबेलियस भी बन जाएगा, फिर वो डॉगमेटिक भी बनेगा, फिर वो डिक्टेटोरियल भी बनेगा, डॉगमेटिक नहीं सॉरी, डिक्टेटोरियल भी बनेगा। समझ रहे हो आप? मतलब उसको पावर में आ गया तो बदला लेगा, बराइटा सल्फ। देखो कि जब ये बनेगा तो डिक्टेट करेगा, फिर ये करो, क्योंकि बोलेगा दिस इज हाउ इट वर्क्स, दिस इज हाउ माय बॉस वाज, मेरी सास भी ऐसी थी। हेलो, एक बहू जब सास बनेगी तो वो भी वैसे बोलेगी, नहीं मेरी सासू माँ ऐसी थी, फिर आप क्या करोगे? आप ट्रेडिशनल प्रेजुडाइज में एक्ट करोगे, बेसिकली सोच उतनी है। तो नैरो माइंडेड किसी ने बहुत अच्छा बोला, पर नैरो माइंडेड का मतलब बस वही, पर नैरो माइंडेड का मतलब ये कि उसके दिमाग में उतना ही जा रहा है। नैरो मतलब क्या? तंग है ना, तंग गलियां, तो भैया एक बंदा इधर से जा रहा है तो दूसरा आ ही नहीं सकता, वन वे ही है ये। दिल्ली की गली अगर आप देखोगे, कोई भी शहर की पुराने अगर आप हिस्से में चल रहे हो, और पुराने नासिक में आप चले जाओ, तो वहां पर आपको तंग गलियां मिलेंगी, एक ही बंदा इधर से उधर जा सके, दूसरा आ ही नहीं सकता, वो होता है नैरो। तो उसकी दिमाग ऐसा ही उतना ही है, जगह ही उतनी है भाई, हार्ड डिस्क ही उतना है, तो वो वैसे ही चलेगा, बस सीधे रास्ते चल रहे, समझ रहे हो आप? दैट इज हाउ बराइटा का प्रॉब्लम। इसीलिए तो फियर ऑफ नैरो प्लेसेस है उसमें। क्यों नैरो प्लेस? मतलब क्या? नैरो प्लेस का मतलब क्या कि भैया एक ही रास्ते चलना है, फिर वापस नहीं आ जाएगा, वापस नहीं आ सकता। दूसरा नैरो माइंडेड का फियर नैरो प्लेसेस का मतलब क्या होता है पता है? जब अटेंशन ऐसा कम 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 नैरो 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 डाउन उसकी तरफ जब आ जाता है, जब इसको आगे जाने की बारी आती है तो इसकी फट जाती है, तब भैया फिर हालत खराब हो जाती है। दैट इज हाउ फियर नैरो प्लेसेस इज। इसीलिए वो ऐसी जगह पे नहीं जाएंगे जहां पर ऑल द फोकस विल कम टू हिम, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। जब आएगा तो उसकी वाट लग जाएगी। हेलो, आर यू गेटिंग मी? रीजन इज एलिमेंट्स फ्रॉम ओवर प्रोटेक्शन, है ना। प्रॉब्लम क्या हो जाता है ना कि ओवर प्रोटेक्शन देने के कारण क्या हो जाता है ना कि ये लोग फिर डेवलप नहीं हो पाते हैं। तो भी नैरो माइंडेड है, उसको आप थोड़ा सा भैया उसके अंदर आप
जैसे आप करते हैं ना आजकल, जैसे मोबाइल की साइज छोटी हो रही है, मतलब उतनी है, लेकिन उसकी कैपेसिटी बढ़ रही है ना, उसके अंदर जो स्लॉट है हार्ड डिस्क के वो छोटे छोटे कर रहे हैं, हाई वाले डाल रहे हैं ना, तो इतना भी है, अगर आप उसके अंदर हाई क्वालिटी मटेरियल डालोगे तो उतनी जगह में ज्यादा चीज बैठ सकती है। हेलो, आर यू गेटिंग मी? लेकिन ओवर प्रोटेक्शन रहा ना तो उसके अंदर आप नई चीज डालोगे ही नहीं, फिर उनका डेवलपमेंट कम हो जाता है। अगर ओवर प्रोटेक्शन नहीं रहा तो उसमें आप क्वालिटी चीज ही डालोगे तो फिर वो परफॉर्मेंस अच्छा करेगा। तो बराटा मतलब नॉट नेसेसरली नॉट अ गुड परफॉर्मर, रिमेंबर दैट बराटा विल परफॉर्म टू हीज कैपेसिटी, इसलिए बोलते हैं आई विल डू द बेस्ट टू माई कैपेसिटी। ये वर्ड वहीं से आया है, आई विल डू माई बेस्ट टू द अटमोस्ट ऑफ माई कैपेसिटी। आपको लेटर जब आएंगे ना किसी के, आई विल डू बेस्ट टू माई कैपेसिटी, ये टू माई कैपेसिटी इज फ्रॉम देयर, प्लीज रिमेंबर दिस। दिस इज आउट ऑफ अ हम्बल माइंड, वन सेकेंड आउट ऑफ अ नैरो माइंड हु नोज कि भाई नहीं, मैं इतना ही कर सकता हूँ भाई, इससे ज्यादा नहीं। तो ये टू माई कैपेसिटी अगर आए ना तो आप मन में बराटा जरूर रखिएगा। हेलो, आई होप आई हैव नॉट कंफ्यूज्ड यू गाइस, आई होप आई हैव नॉट गॉन टू हाई अप, बट दिस इज व्हाट आई बिलीव, दिस इज हाउ इट इज। बाकी आप बराटा सब के सारे रुब्रिक्स सारे रेपर्टरी से पढ़ लेना, फिर मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है? नेक्स्ट टाइम फिर से मैं आपको कुछ न्यू एज पॉलिक्रेस पढ़ाने की कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच गाइस, दिस इज आवर 80th लेक्चर and today morning again I'm very pleased I got first phone call in the morning for me was from Sanjay Saigal sir. Okay, I was very happy, sir just came, he landed home and he called, बोला मैंने अब तक घर की लाइटें जला रहा हूँ लिया कर, तो तेरे को कॉल करना। सर आहेत लेक्चर मध्ये। हाँ तो नहीं सर विल नॉट कम सर, 100 लेक्चर्स पाएंगे सर। थैंक यू अगेन, whatever we are, whatever I am, whatever we mind people are doing is all thanks to बड़े साइकिल sir. Okay, थैंक thank यू you. सर। Thank you very much, guys, for being there with me. Any questions? I'm there to answer. Otherwise, we'll wind up. Any questions? सर इंटेलेक्चुअल का थोड़ा नहीं समझा सर। इंटेलेक्चुअल एक तो सिंथेसिस में रूब्रिक भी नहीं है, तो दूसरी रेपर्टरी यूज करो ना और वो प्लीज। आप कैसे again, लेना है? why are you behaving like a Baraita that this is not there in नहीं synthesis? सर, वो लेना कैसे, वो भी थोड़ा कंफ्यूज तो हो रहा ये बेटा वो किसी और को पूछ लो, डॉक्टर प्रणीता को पूछ लो। है। ओके सर। इंटेलेक्चुअल का मतलब वही बताया ना कि सो कॉल्ड बुद्धिजीवी। देखो, इंटेलिजेंट मतलब बुद्धिमान, इंटेलेक्चुअल मतलब बुद्धिजीवी, बस। जो ओके बुद्धिमत्ता पर, लिमिटेड बुद्धिमत्ता पर अपनी उपजीविका करते हैं वो है इंटेलेक्चुअल, सिंपल। और इंटेलिजेंट यस। मतलब जो बुद्धिमान है, सिंपल है। तो इंटेलेक्चुअल लोग ज्यादातर सक्सेसफुल होते हैं, ये मैं देखा हूँ, ज्यादातर सक्सेसफुल रहते हैं, या फिर वो अपने आप में मस्त रहते हैं। जैसे सल्फर बाबा भी कि मैं खुश हूँ, मेरे अपने जैसे गालिब थे ना कि बस मैं खुश हूँ भाई, राज दरबार में मुझे नहीं बनना है ना। तो ईगो आ जाए तो फिर वो आ जाता है। ओके, बट ज्यादातर जो एकदम ऐसे वो चश्मे वश्मे जो पहनते हैं ना, मैं बताया ऐसा वो ये, और ऐसे टाइली आएंगे और बैठेंगे और हाँ 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 यस सर, हाँ सर, हाँ यस डॉक्टर या और रिपोर्ट वगैरह लेकर आएंगे, आपको दिखाएंगे सब कुछ, रिपोर्ट वगैरह करके आएंगे, इधर उधर से जानकारी लेकर के आएंगे, जहां तक उनकी बुद्धिमत्ता यूज कर सकते उतना घुसेंगे उसमें। तो मिडिल सब में मत आप अटकना, मैं फिर समझाता हूँ। आप लोग ज्यादातर लोग नहीं लेकर आते ये रिपोर्ट क्या है वो क्या है क्या, आप फिर क्यूरियस में जाते हो उसमें जाते हो, नहीं वो सब है, सबको मिलाकर एक रूब्रिक बनता है इंटेलेक्चुअल। ओके, ये सब यस। लोग मेरे लेक्चर में हो ना, आप मेरे रात वाले लेक्चर में होती हो ना? नहीं सर, कब रहता है मतलब? सर प्रणीता मुझे बता ऐड कर। दीजिए। हाँ हाँ सर, डॉक्टर मैं ऐड प्रणीता कर आपको देती बता हूँ। दीजिए। यस हाँ आप डॉक्टर प्रणीता से संपर्क कर लीजिए। यस यस। और ठीक है, सुंदर। ओके चलो, थैंक यू सो मच सर, बहुत बढ़िया केस था, मजा आ गया। कोई और, एनीबडी एल्स आपका गाइस? नाम क्या है मैडम? डॉक्टर अंजलि आसावा। ओके। अंजलि, आप डॉक्टर प्रणीता का नंबर लिख लेना, उनसे आप फोन पे बात कर यस लेना। सर, यस सर, यस सर। एनी क्वेश्चंस फ्रॉम अदर्स गाइस? Okay, no questions, Pranita, you can wind up. I have my appointments lined Thank up. you so much, sir, for a wonderful session. You have taught Bharata self so many times, but every time it is a new learning, and really it was very wonderful.
the way you have explored this remedy and made it so simple, like the combination of rubrics, making combination of rubrics, you have command on it and you make it so simple to understand. Thank you Right. so much, sir. Thank Very you. good. Thank Thank you you. everyone for joining. Thank you. Remember, when we heal others, remember, when you are healing others, in turn you are healing yourself. So if I'm sharing something, I'm receiving also. Please remember. Thank you. So everybody, remember this thing, keep sharing. Do not keep anything with you. Don't keep anything with you. Don't hoard things. That is not going to make you rich. That might make you wealthy, but that's never going to make you rich. And that is never going to fulfill the purpose why you are born here. Our master what he has said, the vital force ke bare mein, the higher purposes of our existence. Please remember is sharing. Thank you. Bye. God bless. Allah Hafiz.